Hello students, in this lecture we are going to continue the second lesson biological classification. In the previous video I had discussed about these three kingdoms, kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi, about our 5 kingdom system. Last lecture मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੀਲੀਏਟਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਲੈਜੀਲੇਟਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੈਨ ਸਲਾਈਮ ਮਾਊਲ ਸੀਗੇ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਤੇ ਮੋਨੇਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਿਆਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇਨ ਕਿੰਗਡਮ ਓਕੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿੰਗਡਮਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨੇਰਾ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਲੀਏਟ, ਫਲੈਜੀਲੇਟਸ, ਸਲਾਈਮ ਮਾਊਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਇਨ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਫੰਗਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੇਲੀਆ। these two kingdoms have two different full-fledged chapters, chapter number 3 kingdom plantae and chapter number 4 kingdom animalia in your book. So these two kingdoms we will discuss in those chapters in my next videos. Today I would continue with the topic viruses. Prior to that, one topic is missing in our lecture, in the previous lecture, that was the life cycle of plasmodium. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੀਲੀਏਟ, ਫਲੈਜੀਲੇਟ, ਸਲਾਈਮ ਮਾਊਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਸਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪੋਨ ਦਿਸ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਨ ਆ ਇਹ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਮੋਸਕੀਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। erasing this thing just to explain the today's lecture. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਆ। ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਦਾ plasmodium species is the causing agent for malaria, ठीक है? मलेरिया ਦੇ ਲਈ ਇਹ causing agent ਆ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਮੱਛਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਨੂੰ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਇਹ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗॉट ਇਟ? ਸੋ ਮੋਸਕੀਟੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਸਕੀਟੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਆ ਨਾ, ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀਜ਼, ਓਨਲੀ these mosquito, ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰੂਗਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ? we will continue with that. So
to draw a life cycle for the Plasmodium. Life cycle for Plasmodium vivax कर सकते हैं आप स्पीशीज दी, ठीक है। दिस इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीशीज। इन द साइंटिफिक नेम आप पढ़िया है कि नाम जोड़ा है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे है, जीनस एंड स्पीशीज। वैसे तो असं ये पैरलली इदा लिखते हैं, बट वो मैं जगह घट करके इस तरह लिखा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लाइक दिस। एंड मैं तुम्हें यह भी दसिया है कि वी यूजली अंडरलाइन द साइंटिफिक नेम, ठीक है। साइंटिफिक नेम को हमेशा असीं अंडरलाइन करते हैं। बुक्स के बिना अंडरलाइन तो लिखा होंगे, बट वो लैंगुएज उन्होंने जिदा इदा टेढ़ी होंगी हैगी है ना, इटैलिक वर्ड्स तुसीं शायद कहते हैं वो इस तरीके नाल प्रिंट होया होंदा। दैट्स वाई जो इदा प्रिंटिंग होंदी है तो वो थल्ले लाइन की जरूरत नहीं, बट वैन एवर तुसीं साइंटिफिक नेम लिखना तुसीं उहनूं अंडरलाइन करना, जीनस एंड स्पीशीज़ नूं अलग अलग अंडरलाइन करना, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं मिलते फाइनल एग्जामिनेशन कदे भी, ठीक है। सो प्लाज्मोडियम की गल करते हैं। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल इसका स्टार्ट होंदा है देखो मैं तुहानूं इत्थे शॉर्टकट दे विच दसदी हां लाइफ साइकिल। आफ्टर दैट इहदा एक जस्ट एक पिक्चर मैं अपलोड करूँगी विद लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक पिक्चर अपलोड कर दूँगी, तुसीं उस तो ज़्यादा प्रॉपरली डिटेल च ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। हुण इत्थे हैगा साडे कोले दिस इज द फॉर्म इनफेक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये इनफेक्टिव फॉर्म आ, ये जिड्डा वड्डा मैं ड्रॉ कर रही है एड्डा वड्डा हुंदा नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट टू शो यू पीपल, अदरवाइज दीज आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। दिस इज द स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड जिन्हें की इन्फेक्शन कॉज करनी। हुण तुसीं ये सोचते होंगे कि भी ये शायद सीधा ब्लड दे विच इन्फेक्शन कर दिंदा, बट नो, हमेशा मलेरिया डिटैक्ट कुछ दिन बाद हुंदा। किसी नूं फीवर आ रहा, सिम्पटम्स आ रहे हैं, बट मलेरिया की डिटैक्शन जिहड़ी हैगी आ, डायगनोज ऑफ द डिजीज़ वो कुछ दिन बाद हुंदा है, या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। तो वो क्यों हुंदा है, क्योंकि पहला इहदियां जिहड़ियां स्टेजेस अर्ली स्टेजेस हैगियां ने वो लिवर दे विच कंप्लीट हुंदियां आ। जदों ये स्पोरोजोइड बॉडी च पहुँचता है, सपोज किसी मॉस्किटो ने कट्टिया तो ये प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट उस पर्सन के अंदर चला गया, वो बॉडी चों ये लिवर च जाना, ठीक है। लिवर के सैल्स साडे कोल इस तरह के लिवर के सैल्स होंदे हैगे आ, हैग्जागनल सैल होंदे आ साडे लिवर के। इस स्पोरोजोइट ने इनू इन्फेक्ट करना, ठीक है। आ लिवर सैल सीगा, इहदे अंदर न्यूक्लियस आ, इनू इन्फेक्ट करना एंड ये साडे कोले बन जाना इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिप्टोजोइड। क्रिप्टोजोइड, ठीक है। क्रिप्टोजोइड ने अगे यही स्टेजेस नूं असीं इदां लिवर के सैल च ही कंटिन्यू करते हैगे आ, दिस वे। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैगे, ठीक है। उस तो बाद ये अपने आले दुआले थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदर करन लग जाते हैं। न्यूक्लियाई बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, पहला न्यूक्लियस ने डिवाइड कर लिया, न्यूक्लियस की डिवीजन तो बाद साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करके ते छोटे छोटे साडे कोले स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देने हैगे आ क्रिप्टोमीरोजोइड्स। इन्हां नूं असीं कहंदे हैगे आ क्रिप्टोमीरोजोइड्स, ओके। हुण जिहड़े क्रिप्टोमीरोजोइड्स ने इन्हां ने सैल नूं जिहड़ा लिवर सैल हैगा इनू बर्स्ट करके इन्हां चों बाहर निकल जाना, ठीक है। आ क्रिप्टोमीरोजोइड्स बाहर आ गए। देखो डिफरेंट बुक्स दे विच डिफरेंट लाइफ साइकल्स हो सकते हैं, थोड़ा बहुता मे बी किसी दे विच एक सैल वध दस्सिया होगा कि घट, बट द बेसिक मैकेनिज्म इज दिस विच आई एम गोना टेल यू। तो डायग्राम भी मैं तुहानूं इस तो बाद शो कर दूँगी, तो तुसीं उस चीज़ नूं फॉलो कर सकते हो, बना सकते हो, प्रॉपरली ड्रॉ करके देख सकते हो। दैन कोई प्रॉब्लम हैगी आ यू पीपल कैन आस्क, ठीक है, ओके। ये जिहड़े मीरोजोइड्स ने क्रिप्टोमीरोजोइड्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने की करना, दोबारा तो लिवर सैल में इन्फेक्ट करना,
ठीक है ओके क्यों करना ताकि मल्टीप्लाई हो सकन इनसाइड द लिवर ठीक है हुण ये जिहड़ा स्टैप हैगा ये दोबारा तो लिवर सैल नूं इनफैक्ट करते हैं ना इस प्रोसैस नूं असीं प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी कह दिंदे हैगे आ प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी ओके प्री इरिथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसीज दे विच एंटर होने तो पहला वाली स्टेज ठीक है प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी जदों ये दोबारा तो लिवर सैल नूं इनफैक्ट करके फिर दोबारा इत्थे पहुंचदे आ इत्थे साडे कोले फिर एक सैल ड्रॉ करके मैं दसूंगी इत्थे साडे कोले ना दो तरह के सैल्स बन जाते हैगे आ दो तरह के सैल्स बन जाते आ एक बन जाते हैगे आ छोटे वाले एक बन जाते हैगे आ थोड़े लार्जर साइज के ठीक है दो साइज के साडे कोले ये मीरोजोइड्स बन जाते हैगे आ उन्हां दा असीं नाम रख दिंदे हैगे आ क्रिप्टोमेटामीरोजोइड्स ते क्रिप्टो माइक्रोमीरोजोइड्स ठीक है या मैटा ते मैगा क्रिप्टोमीरोजोइड्स ते माइक्रो क्रिप्टोमीरोजोइड्स ठीक है ओके जिहड़े लार्जर वन हैगे ने दीज आर द मैगा क्रिप्टो मीरोजोइड लेट मी एडजस्ट द कैमरा तुसी आई थिंक इस चीज़ नूं देख नहीं पा रहे हैगे ते these are mega cryptomerozoid मतलब लार्जर साइज वाले these are the micro cryptomerozoid ठीक है गॉट इट हुण इन्हां दा की फंक्शन हैगा आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन ये दो तरह के जिहड़े बन गए हैगे वो किहड़े क्यों बन गए हैगे आ उहदा भी एक सिग्नीफिकेंस आ okay then the next step is these two type of merozoids the micro one and the mega या meta one ये जिहड़े mega या meta cryptomerozoids ने इनू meta cryptomerozoid भी कह दिंदे हैं असीं ये जिहड़े हैगे ने ये करदे आ आरबीसी च एंटर ठीक है ये साडे आरबीसीज दे विच एंटर कर गए एंड जिहड़े ये माइक्रो वन आ अगेन इन्होंने लिवर साइकिल नूं इनफैक्ट करना हैगा लिवर सैल्स नूं इनफैक्ट करना लिवर साइकिल कंप्लीट करी जाना अपना ताकि ये मल्टीप्लाई भी होंदे रहन लिवर दे विच भी इन्फैक्शन कॉज करी जाण एंड इधर आरबीसी वाले पासे नूं भी आने शुरू हो गए जदों ये आरबीसी च आए तुहानूं सारिआं नूं आई थिंक ये चीज़ पता होगी कि साडे जिहड़े आरबीसी आ दे आर न्यूक्लीएटेड उन्होंने विच न्यूक्लीअस नहीं हुंदा हैगा अगर नहीं भी पता तो ये चीज़ हुण ध्यान च रखनी है कि साडे आरबीसी जिहड़े हुंदे रैड ब्लड सैल्स इरिथ्रोसाइट जिन्होंने असीं कहने आ उन्हां दे विच देयर इज़ नो न्यूक्लीअस कोई भी सैल ऑर्गेनली नहीं हैगी न्यूक्लीअस नहीं हैगा जदों ये मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड एंटर करूगा तो ये बनाऊगा ये विच फर्स्ट स्टेज न्यूक्लीअस वाली ट्रोफोजोइड ठीक है ये ट्रोफोजोइड स्टेज बनूगी उस तो बाद अगली स्टेज बनूगी दिस इज ट्रोफोजोइड नेक्स्ट स्टेज बनूगी सिग्नेट रिंग स्टेज जिहड़ी है बेसिकली ये एक रिंग वर्गा स्ट्रक्चर होंदा है आरबीसी आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਆਰਬੀਸੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਟੇਡਾ ਮੇਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਉਂਡਡ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਸਿਗਨੇਟ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਗੇਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੁਝ ਅਮੀਬਾ ਲਾਈਕ इस तरह का अमीबॉइड स्टेज बन गई अमीबॉइड स्टेज ठीक है हुण ये जिहड़ी अमीबॉइड स्टेज आ इस स्टेज तो लेट मी फिक्स द कैमरा बिकॉज इधर नूं कंप्लीट नहीं होना मैनूं थोड़ा जिहा इधर नूं ही करना पैना
6। सो मैं इत्थों इरेज करके अगेन कर दिंनी हाँ ड्रॉ। ट्रोपोजॉइड तो बाद आ गई सिग्नेट रिंग स्टेज, ठीक है, सिग्नेट रिंग स्टेज, गॉट इट। इस तो बाद आ गई अमीबॉइड स्टेज, ठीक है, अमीबा लाइक, गॉट इट। देन आफ्टर अमीबॉइड स्टेज तो बाद साडे कोले शाइजोंट स्टेज आ जानी। उहदे विच कोई खास डिफरेंस नहीं हुंदा, बस सीधा अंदर जिहड़ा न्यूक्लियस हैगा उहदी आही चेंज हो गया शेप, ठीक है। शाइजोंट, शाइजोंट तो साडे कोले मीरोजोइड्स बन जाने हुण इहदे विच, मीरोजोइड्स इदां छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, अगेन उन्होंने असीं नाम दे दिता मीरोजोइड्स का, गॉट इट। मीरोजोइड्स जिहड़े ने दीज आर मीरोजोइड्स, ये पहला भी आप टर्म नाल फैमिलीयर आ, मीरोजोइड्स। मीरोजोइड्स तो साडे कोले दो तरह के अगे स्ट्रक्चर्स बनने, इन्हें होर अगे सैल्स नूं आरबीसीज नूं ही इनफैक्ट किया, तो इनफैक्शन तो बाद साडे कोले इत्थे एक आरबीसी बने माइक्रोगैमीट, ये मतलब कि मेल गैमीट, एंड एक बने मैक्रोगैमीट, ये फीमेल गैमीट, गॉट इट। देन आफ्टर देयर फ्यूजन दे विल गिव राइज टू अ जाइगोट, ठीक है। आ जिहड़ी स्टेज आ हुण इत्थे साडे कोले मॉस्किटो ने इहनूं सक कर लेना, सक बाय मॉस्किटो, ठीक है, सक्ड बाय मॉस्किटो। आ वाली जिहड़ी स्टेज आ इहनूं मॉस्किटो ने सक कर लेना। दैन ये मॉस्किटो की जिहड़ी सक होने तो बाद मॉस्किटो की जो मॉस्किटो ने सक किया वो इंटेस्टाइन च गया ब्लड, है ना, ये वो इंटेस्टाइन आ वो स्टमक वॉल मैं ड्रॉ कर रही है, इस तरह वो स्टमक वॉल के सैल्स आ, ये अगलियां स्टेजेस वो स्टमक वॉल च कंप्लीट होंदियां हैगियां आ, ठीक है। मॉस्किटो की अंदर ये चला गया जोड़ा जाइगोट आ, ठीक है। इस तो बाद इन्हें मॉस्किटो की जी स्टमक है ना ये चला जाना, ये लाइनिंग चला जाना है, एंड ये लाइनिंग के जाके इन्हें बनाना एक स्ट्रक्चर, उन्होंने असीं नाम देना ऊकाइनीट का, ठीक है, ऊकाइनीट्स, इदां दे स्ट्रक्चर्स उहदे विच भी बन जाने आ, ऊकाइनीट्स, ऊकाइनीट्स, गॉट इट। ऊकाइनीट्स ने फिर अगे इस स्टमक की वॉल चों इस तरीके नाल इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड रिलीज होना, ठीक है। ये सारे रिलीज होके दैन अगेन इत्थे पहुँच गए, गॉट इट। हुण साडे कोल जस्ट वेट फॉर अ सैकेंड, अगर मेरे तो एक डिफरेंट मार्कर आई कैन फाइंड आउट, ओके। आई जस्ट हैव वन मोर कलर विद मी जस्ट टू शो यू। हुण देखो आ साडे कोले प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी हो गई सीगी, ते इत्थों लैके आ आरबीसी वाला जिहड़ा पोर्शन आ ये सारे नूं असीं की कहना हैगा इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी, इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी, ओके, क्योंकि ये आरबीसीज दे विच हो रही आ, ठीक आ। ते उस तो बाद आ जिहड़ा साडे कोले मॉस्किटो दे विच चला गया, इत्थे फिर दोबारा स्पोरोगोनी हो गई, इहनूं असीं लिख सकते हैं स्पोरोगोनी। अच्छा, हुण मॉस्किटो दी इंटेस्टाइन तो स्टमक वॉल चों सलिवरी ग्लैंड्स दे विच जांदा है यह पैरासाइट, सलिवरी ग्लैंड्स तो मुड़ के फिर जो मॉस्किटो ने बाइट करना किसी हैल्दी परसन नूं तो ओहदी प्रिकिंग दे नाल स्पोरोजोइट ओहदी बॉडी च चला जांदा हैगा आ, ब्लड स्ट्रीम तो फिर ये फ्लो करके लिवर च पहुँचता आ, इन्फैक्शन कॉज शुरू करता है, एंड उस तो बाद दोबारा मल्टीप्लाई होके मुड़ के आरबीसीज तक आ जाता हैगा।
this is all about the life cycle of Plasmodium. Let me adjust the camera so you can see the whole life cycle. Okay, I think this is it. Yeah, little more. ठीक है भी, ये हैगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। गॉट इट। सारी लेबलिंग एंड सारा पूरा का पूरा डायग्राम मैं तुहानू इत्थे ड्रॉ कर दिता आ। तुसीं इहनूं पॉज करके वीडियो नूं ते अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो लाइफ साइकिल। ठीक आ, मैं इसे करके इनू डिफरेंट एंगल्स ते रोटेट कर रही हाँ ताकि जे किसी की कोई लेबलिंग मिस होंदी होवे तो तुसीं उस चीज़ नू देख के लिख सकते हो। गॉट इट। पॉज करके डायग्राम ड्रॉ करके देखना। इफ़ यू पीपल फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड दिस इज़ वेरी इंटरस्टिंग। सिर्फ एक दो टर्म्स याद करने की ज़रूरत आ। क्रिप्टोजॉइट याद करने की ज़रूरत आ। दैन उस तो बाद एक मीरोजॉइट वर्ड याद करने की ज़रूरत आ। फिर क्रिप्टो किते पहला लग गया होया किते बाद च लग गया होया या द जस्ट गेम इज़ ऑफ वर्ड्स। सिर्फ कुछ वर्ड्स ने। शाइजोगनी एक वर्ड आ। प्री एरिथ्रोसिटिक, प्री मीनस पहला, एरिथ्रोसिटिक मीनस RBCs तक पहुँचने तो पहला। ट्रोपोजोइट, जोइट वर्ड बार बार आ रहा हैगा। शाइजो गनी जी हैगी वो बार बार आ रही आ। दैन सिगनेट रिंग, स्टेज रिंग तो याद रखना। ठीक है, वो रिंग्स होंदियां ने ना, एक उपर मोती वाली रिंग्स होंदियां, उपर सेंटर च मोती लगा होंदा एंड रिंग हैगी आ, दैट इज़ काइंड ऑफ सिगनेट रिंग। ठीक है। दैन अमीबॉइड, अमीबा वर्गी शेप हो गई न्यूक्लियस की। शाइजोंट वर्ड दोबारा आ गया। ठीक है, शाइजोगनी तो। उस तो बाद हुण इत्थे तक साडे कोले जाइगोट बन गया सीगा। जाइगोट जदों अंदर जाना हैगा या मॉस्किटो के दोबारा उत्थे स्पोर बन जाते हैं दोबारा तो स्पोरोजॉइड स्टेज आ जाती। दैट्स वाई इनू असीं स्पोरोगोनी कहने हैगे आ। ठीक है, इस करके असीं इनू की कहने हैगे आ, स्पोरोगोनी। सो द होल लाइफ साइकिल मैं ऊपर लिख दिनी हाँ। दैट कैन बी, वी कैन से दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्री एरिथ्रोसिटिक, शाइजोगोनी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप अरेंज कर देते हैं थोड़े टाइम लिए। ठीक है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ते 3 स्टेजेस एदियां हो गई। प्री एरिथ्रोसिटिक, एरिथ्रोसिटिक, शाइजोगनी ते थर्ड वन इज द स्पोरोगोनी which is known as spore formation. Got it? I hope you people enjoyed the life cycle, learning of life cycle, and you would try to make it. So this is very important topic. ये टॉपिक तुहाडे +2 क्लास दे विच भी कंटिन्यू हुंदा आ। सो इनू हुणी तुसीं वधिया ढंग नाल कर लो ताकि नैक्सट क्लास दे विच तुहानूं जस्ट इनू रिवाइज करन दी ज़रूरत पवे। ठीक है, एनी टाइम यू कैन कम टू द वीडियो सैक्शन एंड वॉच दिस वीडियो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सो अज दी इस लैक्चर लई ये टॉपिक इनफ आ। इन द नैक्सट लैक्चर वी विल मीट विद द टॉपिक वायरसेस। Viruses are what? Viruses are still the topic of controversy, whether they are living or non-living, because they are living inside our body or inside any living organism, and they pretend to be dead outside any living organism. जिदा हुण तुसीं COVID-19 सिचुएशनस फेस कर रहे हैगे आ, है ना, तो वो COVID-19 सिचुएशन इज़ जस्ट ड्यू टू अ वायरस, कोवा वायरस, coronavirus. So in the next video we will discuss about those kind of things, viruses,
So keep watching, stay connected for the time. Bye bye.